Hello everyone. Welcome to Literature Vidya. So today we are actually going to study somebody really important. आज जिस पोएट को हम पढ़ने वाले हैं, he is somebody who appears in almost every examination that's related to English literatures, whether it's your UGC NET or any other examination, your assistant professor examination या फिर कोई भी और एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर आता है. तो stay attentive, listen to each and every word very carefully and try to learn within the class. And that's my motto. I'm going to make you learn things right here. We're not going to leave anything to be learned after the class. Okay? So take out your pen, your papers, your notebooks to make notes and stay attentive. Okay? So let's begin. So the individual that we are going to cover today is an important Renaissance poet by the name of Philip Sidney. Okay? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन? Philip Sidney. Okay, so look at the first photograph. Can you see this? This individual is Philip Sidney. And he was a multitasker. He was not just a poet. वो एक कोटियर भी थे, ये एक मिलिट्री मैन भी थे, ये एक सोल्जर भी थे, and a very famous scholar in the Elizabethan age. Okay? Then this is one of the quotes written by him where he says, "It is not good to wake a sleeping lion." Okay? Now come on to the third photograph. This is of Arcadia. This is one of his longest work. Okay? So हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ रहा है? आर्काडिया जो है वो फिलिप सिडनी का लॉन्गेस्ट वर्क है, राइट? और ये उसने अपनी सिस्टर मैरी को डेडिकेट किया है, जिसने हेनरी हर्बर्ट से शादी कर ली थी, एंड शी बिकेम दी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक. ओके, इज इट क्लियर? आर्काडिया जो है वो फिलिप सिडनी का लॉन्गेस्ट वर्क है. ये वर्क उसने अपनी लिटिल सिस्टर मैरी को डेडिकेट किया है, जिसने हेनरी हर्बर्ट से शादी कर ली थी, एंड शी बिकेम द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस, राइट? This shows the birth date of Philip Sidney. Very important. November 30, 1554. तो अब ये डेट अपने दिमाग में छाप लो. November 30, 1554. This is the date जब फिलिप सिडनी ने धरती पर जन्म लिया. When? November 30, 1554. Okay, is it clear? Now this is the image of Philip Sidney's most famous work, that is Astrophil and Stella. And यहाँ से सबसे ज़्यादा questions आते हैं Astrophil and Stella से, right? तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं. Then we are going to study all these books also in detail as we move on. Okay? तो अब एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ये जो बुक है ये इसके बहुत करीब है. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज द वर्ड एस्ट्रोफिल मीन्स? एस्ट्रोफिल का मतलब होता है एक स्टार लवर, और जो स्टेला है इट मीन्स अ स्टार. और ये जो बुक है ये सिडनी की जिंदगी के बहुत करीब है. व्हाई? Because this star lover is Sidney himself. और ये जो स्टेला है, right? She is Penelope Durex, right? जो हमारे सिडनी जी की beloved थी. But
Because of certain circumstances, Sydney could not marry Penelope, and she got married to Mr. Rich. Okay, then is it clear? So he wrote 108 sonnets and 11 songs for her, right? Is it clear? और ये कब लिखा गया था? When did he write all this? He wrote this around 1580s. He has written this around 1580s. Publication इसका 11 साल बाद होगा, in 1591. Okay? Is it clear? Should we move forward? तो इस फर्स्ट स्लाइड में हमने बहुत कुछ जान लिया है फिलिप सिडनी के बारे में. वी हैव गॉट टू नो व्हेन वाज ही born. He was born on November 30, 1554. वी हैव गॉट टू नो कि उसका लॉन्गेस्ट वर्क आर्काडिया है, जो उसने अपनी सिस्टर मैरी को डेडिकेट किया है, who married Henry Herbert, and she became the Countess of Pembroke. Okay, then he has written one of his most famous works that's called Astrophil and Stella. और एस्ट्रोफिल का मतलब होता है एक स्टार लवर, स्टेला का मतलब होता है एक स्टार. ये वर्क उसने 1580s में लिखा था. पब्लिकेशन इसकी 11 साल बाद हुई, दैट्स 1591, एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 108 sonnets and 11 songs, right? And this work he dedicated to his beloved Penelope Devereux. Okay, so now here we authentically begin Philip Sidney. I've given you the basic background of Philip Sidney, पर यहाँ से let's begin from right from the start when he was born, and let's trace down year by year what he has done. Okay, तो देखो Philip Sidney, already we know कब पैदा हुए थे? 30th November 1554. And when did he die? He died on 17th October 1586. वो 31 साल की उम्र में ही he died. And how did he die? You know how did he die? He died while he was performing a military activity, right? He was fighting for the cause of Protestantism, right? वो cause of Protestantism के लिए he was fighting a war. And it is then that he died at a very small age of 31, right? तो इनकी बर्थ डेट क्या है? 30th November 1554 to 17th October 1586. ओके, उसके बाद में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक मल्टीटास्कर थे, राइट? सो ही वाज अ इंग्लिश पोएट, ही वाज अ कोटियर, अ स्कॉलर, अ सोल्जर. कैन यू सी? And hence with all these roles that he is playing, एक पोएट था, कोटियर था, स्कॉलर था, सोल्जर था, and hence he is a very important figure in the Elizabethan age. Yeah, you cannot deny his existence with all that he has given to the Elizabethan age, despite the fact that he survived only 31 years. Yes, ठीक है. तो अब वो कहाँ पैदा हुए, राइट? देखो उसके पैदा होने के स्थान पर ही यू हैव पेन्सहर्स्ट, राइट? तो स्कॉलर तो ये पहले ही बन गए थे. पेन्सहर्स्ट प्लेस, कैंट. Okay, he was born in the, where was he born? He was born in Penshurst Place, Kent में उनका जन्म हुआ, right? And he was born in a well-to-do family, एक aristocratic family में उनका जन्म हुआ, right? And he was educated in the Swansbury School and Christ College, Oxford, right? तो हमारे जो सिडनी जी हैं उनका जन्म पेन्सहर्स्ट नामक एक प्लेस में कैंट में हुआ. वो एक काफी अच्छे खानदान में पैदा हुए थे, अ वेल टू डू फैमिली, एंड हेंस ही वाज गिवन गुड एजुकेशन. ही वाज सेंड टू द स्विसबेरी स्कूल एंड टू द क्राइस्ट चर्च कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड. ओके, देन ही वाज द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे थे वो, ऑफ सर हेनरी सिडनी एंड लेडी मैरी डूडले. ओके, वो सर हेनरी सिडनी और लेडी मैरी डूडले के सबसे बड़े बेटे थे,
right? And his mother was the eldest daughter of John Dudley, who was the first Duke of नॉर्थम्बरलैंड। ओके, तो वो सबसे बड़े बेटे थे किसके? हेनरी सिडनी के और लेडी मैरी के। ओके, हिज यंगर सिस्टर मैरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, उसकी जो छोटी बहन थी मैरी, मैरिड किसको? हेनरी हर्बर्ट से उसने शादी कर ली, हु वाज द सेकंड अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक, राइट? वो सेकंड अर्ल था पेम्ब्रूक का। और हेनरी हर्बर्ट भी एक लिटरेरी मैन है, राइट? And was a writer, translator, and a literary patron, right? Okay, Sidney dedicated his longest work, the Arcadia, to her. Okay, after her brother's death, Mary reworked Arcadia, and hence the work came to be known as the Countess of Pembroke Arcadia. जब सिडनी की डेथ हो गई तो मैरी ने इस आर्काडिया को रीवर्क किया, and after that Arcadia began to be known as Countess of Pembroke Arcadia. ठीक है? Is it clear? Are you clear with his basic birth and his parents and his sister and the work that the sister has done? Clear हो गया? एक बार रिवाइज करें। वो एक कोटियर थे, एक स्कॉलर थे, एक सोल्जर थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था एलिजाबेथन एज का। उनका जन्म पेनहर्स्ट पैलेस कैंट में हुआ। वो एक काफ़ी नामी ग्रामी फैमिली में पैदा हुए थे। वो स्विसबेरी स्कूल और क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भेजे गए थे। वो सबसे बड़े बेटे थे सर हेनरी सिडनी और लेडी मैरी डूडले के। उन्होंने अपनी यंगर सिस्टर मैरी को अपना लॉन्गेस्ट वर्क आर्काडिया डेडिकेट किया, पर जब वो मियर 31 ईयर्स की एज पे मर गए थे तो उन्होंने उसकी सिस्टर ने इस वर्क को रीवर्क किया, एंड आफ्टर दैट इट केम टू बी नोन एज काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक आर्काडिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे बढ़े। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी से 1575 में सिडनी मेट पेनोलिप डिवरॉक्स, राइट? 1575 में सिडनी किससे मुलाकात होती है? सिडनी मीट्स पेनोलिप डिवरॉक्स, एंड हु इज पेनोलिप डिवरॉक्स? पेनोलिप डिवरॉक्स जो है वो सिडनी की बिलवेड है। ओके, बट दिस पेनोलिप डिवरॉक्स later marries Robert Rich. She could not marry Sydney. 1575 में हमारे सिडनी उसकी बिलवेड से मिलते हैं, जो कि कौन होती है? जो होती है पेनोलिप डिवरॉक्स। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस पेनोलिप डिवरॉक्स जो है उसकी शादी लॉर्ड रिच से हो जाती है। शी मैरीज लॉर्ड रिच। उसकी शादी सिडनी से नहीं हो पाती। Though his father wanted Penelope to marry Sydney, but because his father dies, इसकी शादी सिडनी से नहीं हो पाती। And hence, Sydney writes Astrophil and Stella 1580 में, और उसकी इंस्पिरेशन कौन होती है? पेनोलिप डिवरॉक्स। Sydney was okay, and I have already told you this point कि जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है वो 1580 में लिखी गई थी, दो उसका पब्लिकेशन डेट 1591 है, 11 साल बाद। इसकी इंस्पिरेशन कौन है? पेनोलिप डिवरॉक्स। ओके, नाउ सिडनी वॉज अगेंस्ट द फ्रेंच मैरिज ऑफ एलिजाबेथ। सिडनी जो था, ही डिड नॉट वॉन्ट क्वीन एलिजाबेथ टू मैरी अ फ्रेंच मैन। He did not want Elizabeth to marry the 17th Earl of Oxford, and hence उसने एलिजाबेथ को लेटर भी लिखा कॉलिंग कि ये जो शादी तुम कर रही हो, दिस इज अ फुलिश एक्ट। बट दिस मेड क्वीन एलिजाबेथ वेरी एंग्री। उसने कहा, सिडनी तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं किससे शादी करूं किससे ना करूं? और इसी उसमें आके सिडनी रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो अगर पूछा जाए कि सिडनी रिटायर क्यों हुआ कोर्ट से, इसलिए बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद क्वीन एलिजाबेथ मैरिंग अ फ्रेंच मैन। तो उन्होंने उस मैरिज को एक फुलिश एक्ट कहा। दिस मेड क्वीन एलिजाबेथ रियली एंग्री, एंड हेंस हमारे सिडनी जी ने कोर्ट से रिटायरमेंट ले ली जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। 1581 में फिर वो अब नाउ ही इज फ्री, राइट? ही हैज टू डू समथिंग। तो अब ये अपने लिटरेरी वर्क पे फोकस करेंगे, और 1580 में ये लिखेंगे व्हाट? एस्ट्रोफिल
एंड स्टेला। और उसके बाद में अगले ही साल 1581 में ही इज गोइंग टू ज्वाइन द कोर्ट अगेन, राइट? एंड नाउ वंस ही ज्वाइंस द कोर्ट ही इज नाइटेड। 1583 में इनको क्या मिल जाता है? इनको नाइटहुड मिल जाता है. So now he will participate in the military activities, which will become the cause of his death. Okay, 1583 में उनको नाइटहुड मिल जाता है और 1584 में वो बन जाते हैं क्या? एमपी ऑफ कैंट. वो एमपी बन जाते हैं कैंट के. और इसी साल 1584 में ही पेनोलिप की शादी हो जाती है. किससे? लॉर्ड रिच से. और जब पेनोलिप की शादी हो जाती है तो तो हमारे सिडनी जी सोचते हैं कि मैं पीछे क्यों रहूं, एंड हेंस सिडनी मैरीज फ्रांसिस. बाद में सिडनी और फ्रांसिस की एक डॉटर भी होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ. ओके, सो लेट्स सी हियर. 1581 सिडनी रिटर्न टू द कोर्ट. 1583 Sydney was knighted. 1584 he was elected the MP for Kent. In the same year Penelope Durox was married, apparently against her will, to Lord Rich. In 1583 he married Frances, 16 years old daughter of Sir Francis. Okay, in the same year he made a visit to Oxford University. अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है with गियोर्डानो ब्रूनो. ब्रूनो के साथ ये जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए. और ब्रूनो बाद में सिडनी को अपना 2 काम डेडिकेट करता है. ब्रूनो लेटर डेडिकेट्स 2 वर्क्स टू सिडनी. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रूनो वी विल सी व्हिच 2 वर्क्स इज ही डेडिकेटिंग टू सिडनी. ओके, सो आर यू क्लियर विद ऑल हिज डेट्स? 1575 में वो पेनेलोप डिवरॉक से मिलते हैं. 1580 के आसपास वो अपना वर्क लिखते हैं. 1581 में ही गोज बैक टू द कोर्ट. 1583 में ही इज नाइटेड. 1584 में ही बिकम्स द एमपी ऑफ कैंट. और उसी साल में पेनेलोप डिवरॉक जो होती है वो लॉर्ड रिच से शादी कर लेती है. लेटर ही विजिट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद मिस्टर ब्रूनो एंड लेटर ब्रूनो डेडिकेट्स 2 वर्क बुक्स टू सिडनी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, now we are going to focus on the literary writings of Philip Sidney, right? Sidney was successful in more than one branch of literature, but none of his works was published during his lifetime. एक भी ऐसा काम नहीं था जो उसके लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था. Why? Because he survived. सिर्फ 31 साल तो he survived. So none of his work was published during his lifetime. उसके सारे काम after his death publish किए गए थे. और उसका फाइनेस्ट अचीवमेंट कौन सा है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज अ सीक्वेंस ऑफ 108 लव सॉनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स, एंड ही इज यूजिंग द राइटिंग स्टाइल विच इज इंस्पायर्ड बाय पेट्रार्क एंड पेरे डी रॉन्सार्ड. तो वो जो सॉनेट्स लिख रहा है, 108 सॉनेट्स जो वो लिख रहा है, उसका जो इंस्पिरेशन है, उसका जो राइटिंग स्टाइल है, उसका इंस्पिरेशन कौन है? 2 लोग हैं, पेट्रार्क और पेरे डी रॉन्सार्ड. These 2 people are his inspiration, जिसके राइटिंग स्टाइल से इंस्पिरेशन लेके वो ये 108 सॉनेट्स लिखता है, राइट? एंड हेंस these sonnets become so famous कि he is known as one of the best sonneteers after शेक्सपियर. शेक्सपियर के बाद इसको अपनी एज का बेस्ट सोनेटियर माना जाता है. और इस बिकॉज ही एंड हेंस ही यूजुअली एडॉप्ट्स द पेट्रार्कन ऑक्टिव विद ए बी बी ए बी बी ए, राइट? तो वो पेट्रार्कन ऑक्टिव को नॉर्मली एडॉप्ट करता है व्हाइल ही इज राइटिंग हिज सोनेट्स विद ए बी बी ए बी बी ए. ओके, देन I've already told you this, that he has written all this for his mistress Lady Penelope Rich. She later becomes Lady Penelope Rich. पहले वो डिवरॉक्स होती है, पर बाद में because this Penelope Durox marries Lord Rich, he dedicates this all these works to his wife. And who is his wife? Frances. ये सारे काम वो फ्रांसिस को डेडिकेट कर देता है. Earliest biography of Sidney was written by his friend and school fellow फुल्के ग्रेविले. फुल्के ग्रेविले ने सिडनी की पहली बायोग्राफी लिखी है.
Remember this. Who has written Sydney's first biography? Fulke Greville. Okay, so is it clear? Now let's इसमें जो important point है and new is that कि सोनेट जो सीक्वेंस वो लिख रहा था उसका इंस्पिरेशन दो लोग थे, पेट्रार्क और पेरेडी रॉन्सार्ड. ओके, now let's move forward and we are going to look at his military activities, right? Okay, military activities. So now he will participate in various wars. In the winter of 1575-76, he fought in Ireland while his father was a Lord Deputy there, right? 1575-76 ने उसने आयरलैंड में लड़ाई लड़ी. Then he carried out a successful raid on Spanish forces also near Exile in 1586, right? And later that year, this is important, 1586 में ही अक्टूबर में, right? In October 1586, now he is going to a war. Which war? The Battle of Zutphen. This Battle of Zutphen, and here he fights. He's joined by Sir John Norris, right? Sir John Norris इसको join करते हैं यहाँ पे, and it is in this battle that he dies fighting, right? So look at here. During the battle, later that year, he joined Sir John Norris in the Battle of Zutphen. Remember this battle, very, very, very important. He joined Sir John Norris in the Battle of Zutphen, fighting for the Protestant cause against the Spanish. And here he is fighting for what? He is fighting for what? He is fighting for the Protestant cause against the Spanish people. Okay? In the Battle of Zutphen. And who does he join? He joins Sir John Norris. Okay? Sorry. During the battle, he was shot in the thigh and died of gangrene. What's gangrene? Look at the image down. This is gangrene. This is when the blood supply in the foot doesn't come और वो decay होना शुरू हो जाता है. Right? So he dies of gangrene 26 days later. After he is shot in the thigh और blood supply रुक जाता है और the body parts begin to decay. That he dies 26 days later at the age of 31. One account says that this death was avoidable and heroic. कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहता तो वो बचा लेता था. Sidney noticed that one of his men was not fully armored. He took off his thigh armor on the ground that it would be wrong to be better armored than his men, right? He removed his thigh armor and he was shot in the thigh. So this death was a avoidable death. अगर वो चाहता तो he could have saved himself, but he felt कि हर इंडिविजुअल को इक्वल आर्मर मिलना चाहिए, राइट? एज ही ले डाइंग, Sidney composed a song to be sung on his deathbed. According to the story, while lying wounded, he gave his water to another wounded soldier, saying, "Thy necessity is yet greater than mine." Can you see? आज के टाइम पे वैसे दूसरा इंसान दूसरे को पानी नहीं देता, बोल देता है झूठा है, I don't share my water and all these things. But this man on the field, when he needed water equally, but he felt कि उसका जो soldier है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, and maybe he can be saved with the water that he gives him, and hence he gives his water to another soldier, saying, "Thy necessity is yet greater than mine." तुम्हारी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा है, right? And this became possibly the most famous story about Philip Sidney, intending to illustrate his noble and gallant character. Okay, is it clear? तो यहाँ से मिलिट्री एक्टिविटीज से हमें क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि अक्टूबर 1586 में हमारे सिडनी जी जो हैं वो गए हैं बैटल ऑफ जुटफेन में, एंड हियर ही फाइट्स विद सर जॉन नॉरिस, या और यहाँ पे इन लोगों इसकी जो थाई है उसमें गोली लग जाती है, and then the blood supply stops, and because of gangrene 26 days later he dies, right?
पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ही वॉज अ वेरी शिवैलरिक, हम्बल एंड अ गैलेंट मैन, राइट। उसने उस फील्ड पे होते हुए भी व्हेन ही नीडेड वाटर इक्वली, उसने अपना पानी अपने को सोल्जर को दिया और बोला कि तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है, दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। और इसीलिए ही उसका जो तुम है ना, उस पे भी यही लिखा हुआ है, लुक एट दिस हियर, दाई नेसेसिटी इज मोर देन माइन। यस। और इनको कहां पर दबाया गया? इनको ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल में, ही वॉज बरीड इन ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल, राइट। ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल में ही वॉज बरीड, बट लेटर ये जो कैथेड्रल है इट वॉज बर्न डाउन इन द ग्रेट फायर ऑफ लंडन, राइट। ये जल गया था कब? ग्रेट फायर ऑफ लंडन में। ये जो हमारा है इनका सेंट पॉल कैथेड्रल, ये जल गया था। तो अगर सवाल आता है कि कौन सा ऐसा पोएट है जिसका जो टूम है वो जल गया था इन द ग्रेट फायर ऑफ लंडन, तो वो हमारे सिडनी साहब हैं। ओके, इट्स फिलिप सिडनी। ओके, और ये जो इमेज है ये बैटल ऑफ जुटफेन की है। ओके, क्लियर? नाउ शुड वी मूव ऑन टू हिज लिटरेरी वर्क्स? यस। ओके, तो देखते हैं उसका जो पहला लिटरेरी वर्क है वो है लेडी ऑफ मेन। दिस इज नॉट दैट फेमस बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये एक मास्क है, राइट। अब मास्क क्या होता है? मास्क बेसिकली अगर हम देखें मास्क, तो मास्क बेसिकली फेमस हुए थे 16th और 17th सेंचुरी में, ठीक है। कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। और इसमें ये एक बेसिक फेस्टिविटी थी जहाँ पे लोग म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस, राइट, इन सब पे काफी ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। तो ये एक तरह का हैप्पी शो है, ठीक है। तो लेडी ऑफ मे जो है वो एक मास्क है। उसके बाद में ये किसके लिए परफॉर्म किया गया था? ये मेजरली क्वीन एलिजाबेथ के लिए परफॉर्म किया गया था 1578-79 में, राइट। ओके, और ये एक वन एक्ट प्ले है, इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट, ये जो हमारा लेडी ऑफ मे है ये क्या है? ये एक वन एक्ट प्ले है, ओके, एंड इट इज पेस्टोरल इन नेचर। इज इट क्लियर? इसका पहला प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? पहला परफॉर्मेंस जो था इसका प्रोड्यूस होने के बाद वो अर्ल ऑफ लाइकेस्टर कंट्री एस्टेट ऑफ वॉनस्टीड में हुआ था, राइट। इसका पहला प्रोडक्शन अर्ल ऑफ लाइकेस्टर्स कंट्री एस्टेट वॉनस्टीड में हुआ था। इज इट क्लियर? तो अब इसकी कहानी क्या है कि बेसिकली मे नाम की एक लेडी होती है, ठीक है। उसके दो स्यूटर्स होते हैं। अब मे से दो लोग शादी करना चाहते हैं, राइट। एक थ्योरिन, एक कौन शादी करना चाहता है? एक थ्योरिन और एक एस्फिलस, ठीक है। अब ये दोनों मे से शादी करना चाहते हैं। थ्योरियन भी शादी करना चाहता है और एस्फिलस भी शादी करना चाहता है। तो अब मे जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि अब आप ही बताओ कि मैं इन दोनों में से किससे शादी करूं, ठीक है। तो अब क्वीन एलिजाबेथ जजमेंट की बेंच पर बैठती है और एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। और कहती है कि अब दोनों गाकर दिखाओ। एंड फाइनली जब ये सारा कंपटीशन होता है, ये होता है, तो हमारा थ्योरिन जीत जाता है और मे की शादी थ्योरिन से हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लेडी ऑफ मे की कहानी है। तो लेडी ऑफ मे जो है वो 1578-79 में लिखी गई थी। ये एक वन एक्ट प्ले है, ये एक पेस्टोरल है और ये एक मास्क है। और ये जो है मेजरली इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ। और इसकी स्टोरी होती है कि मे के दो स्यूटर्स होते हैं, थ्योरिन और एस्फिलस। इन दोनों के बीच में एक सिंगिंग कंपटीशन अरेंज कराया जाता है और थ्योरिन जीत जाता है, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and we are now going to look at his most important work, that is Astrophil and Stella, ठीक है। तो अब एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का फर्स्ट पेज देखो, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पेज है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, राइट।
wherein the excellence of sweet profane is concluded. Okay, but what is important is look at this. It was first printed by Thomas Newman when 1591. ये मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ तुमको कि 1591 में पहली बार पब्लिश हुआ था, राइट? पर अब एक नया फैक्ट ऐड हुआ है यहाँ पे कि किसने प्रिंट किया था? थॉमस न्यूमैन ने, राइट? थॉमस न्यूमैन वो इंडिविजुअल था जिसने 1591 में इस बुक को पब्लिश किया था. ओके, क्लियर? And this is Astrophil and this is Stella and this is their love story. Okay, तो चलो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में. 1580 हमें पता है ये लिखी गई थी, 1591 हमें पता है ये पब्लिश हुई थी, थॉमस न्यूमैन ने इसको पब्लिश किया था. ओके, और द नेम इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो नेम है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किए गए. तो दीज आर ग्रीक वर्ड्स, राइट? एस्टर का मतलब होता है स्टार, फिल का मतलब होता है लवर. तो एस्ट्रोफिल का क्या मतलब होता है? स्टार लवर. एंड लेटिन वर्ड, और स्टेला जो है वो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार, राइट? तो एस्ट्रोफिल जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड है, राइट? इट्स अ ग्रीक वर्ड. और जो हमारा स्टेला है वो है लेटिन वर्ड. ओके, एस्ट्रोफिल का मतलब होता है स्टार लवर, स्टेला का मतलब होता है स्टार. ओके, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. 108 sonnets, 11 songs, right? This sonnet sequence dedicated to Astrophil to himself and Stella to Lady Penelope, though to be Penelope Duverox, later Lady Rich, right? The wife of Robert Rich, the 3rd Baronet. Okay, sonnet has a preface by Thomas Nash, very important, right? तो हमारा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का जो प्रेफेस है किसने लिखा है? वो थॉमस नैश ने लिखा है, राइट? हु हैज रिटन द प्रेफेस ऑफ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का जो प्रेफेस है वो थॉमस नैश ने लिखा है. इज इट क्लियर? यस. अब ये बताओ, थॉमस नैश जो है हमारे, उसकी एक फेमस वर्क का नाम बताओ. रिकॉल इट इन योर माइंड. थॉमस नैश के एक फेमस वर्क का नाम बताओ विच इज वेरी 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 फेमस. कम ऑन. हमारे थॉमस नैश ने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखा है. डू यू रिमेंबर? पढ़ेंगे ये भी, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट? इन्होंने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नामक एक बुक लिखी है और ये यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है, राइट? ही इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. ये सब पढ़ेंगे, बस बता रही हूँ कि आगे पढ़ेंगे तो एकदम से रिकॉल होगा कि ये बताया हुआ फैक्ट था, ठीक है? थॉमस नैश जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है और उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर. और भी बहुत सारी लिखी है बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस. ओके, पर यहाँ पर जो रिमेंबर करने का फैक्ट है वो ये कि इन्होंने प्रेफेस लिखा है ऑफ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ठीक है? और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में और भी वर्सेस है कुछ ऑथर्स की, जैसे थॉमस कैम्पियन, सैम्यूल डेनियल, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, राइट? ये भी एक बार देख लेना. बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो प्रेफेस है वो थॉमस नैश ने लिखा है और इसकी कुछ ऐसी भी वर्सेस है जो किसी और ऑथर्स जैसे थॉमस कैम्पियन, सैम्यूल डेनियल एंड अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड. ओके, शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? तो अब आगे बढ़ते हैं. अब सोनेट क्या होती है? तो सोनेट जो है एक पोइटिक फॉर्म है जिसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? रोमन एम्पायर में, राइट? सोनेट जो है उसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? इन द रोमन एम्पायर. वहां का राजा कौन था? फेडरिक टू. इन द सिलिकॉन सिटी. तो सोनेट जो है उसका बर्थ रोमन एम्पायर में हुआ है जहां का राजा फेडरिक टू था इन द सिलिकॉन सिटी, राइट? और एक 13th सेंचुरी का इंडिविजुअल है जिसका नाम है
कोमो, गियाकोमो डी लेंतिनी, गियाकोमो दी लेंतिनी, राइट। इस इंडिविजुअल को इन्वेंटर कहा जाता है सोनेट का। कौन? गियाकोमो दी लेंतिनी, इसको इन्वेंटर कहा जाता है सोनेट का। ओके, विल यू रिमेंबर दिस? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सोनेट का इन्वेंशन किसने किया है, तो ये रोमन एम्पायर में इन्वेंट हुआ है, जहां पर फेडरिक टू राजा थे इन द सिलिकॉन सिटी, और जो इंडिविजुअल है हु इज सेड टू बी द इन्वेंटर इज गियाकोमो दी लेंटिनी। ओके, और जो सोनेट है वो एक इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, सोनेटो, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, राइट। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम सोनेटो, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डील विद the longest work of Sidney, that's Countess of Pembroke Arcadia। ये वर्क उसने किसको डेडिकेट किया है? अपनी लिटिल सिस्टर को, है ना, मैरी को डेडिकेट किया है, जिसकी शादी हेनरी हर्बर्ट से हुई थी, एंड शी बिकेम द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब तक तुम्हें चीजें याद हो रही होगी, दैट इज वाई आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इट, ताकि तुम्हें और एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड लिसन। तो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक आर्काडिया, राइट, ये एक लॉन्ग प्रोज पेस्टोरल रोमांस है, फिलिप सिडनी ने लिखा है, रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, राइट। अब देखो, आर्काडिया जो है ना, उसके 2 वर्जन्स लिखे गए। ये कॉन्स्टेंटली आर्काडिया को लिखता था, उसके बाद में उसको रीरिवाइज करता था, फिर उसको और बड़ा कर देता था, तो ये बड़ा होते होते बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ओल्ड आर्काडिया और एक न्यू आर्काडिया। ठीक है, तो जो हमारी ओल्ड आर्काडिया है ना, वो तो 20th सेंचुरी तक पब्लिश नहीं हुई थी। ये हमारी न्यू आर्काडिया है जो 16th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये इसका काफी एम्बिशियस वर्क है, राइट। दिस इज हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क, right? Once he wrote the first version of it, Sidney later revised and expanded the work, and hence it is called as Old Arcadia and New Arcadia. ठीक है, clear? Sidney asserted that he intended only to entertain his sister Mary Herbert. Okay? ओल्ड वाली बुक जो है उसकी 5 बुक्स में लिखा गया था, पर जो ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पब्लिश नहीं हुई थी 20th सेंचुरी तक, पर जो न्यू आर्काडिया है वो 16th सेंचुरी में ही पब्लिश हो गई थी। ओके, और इसकी जो आर्काडिया है उसकी हीरोइन का नाम क्या था? पेमिला। अब ये बताओ, ये जो पेमिला है ये कौन सा ऑथर है जिसने अपनी फर्स्ट बुक ही इस हीरोइन के नाम से ली थी? हु इज इट? डू यू नो? वो है हमारे सैम्यूल रिचर्डसन, है ना। सैम्यूल रिचर्डसन ने अपनी पहली नॉवेल पेमिला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, है ना। ठीक है, तो मतलब जो आर्काडिया है वो बहुत सारे ऑथर्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी। बहुत सारे ऑथर्स जो हैं उन्होंने आर्काडिया को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाकर अपना वर्क लिखा। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से ऑथर्स हैं जिनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखो ये यहाँ, ओके, तो विलियम शेक्सपियर जो है हमारे, उन्होंने आर्काडिया से ग्लाउकेस्टर का सब प्लॉट बोरो किया है, राइट। तो पहला हमारा कौन है? पहले हमारे हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने ग्लाउकेस्टर वाला सब प्लॉट बोरो किया है आर्काडिया से। ओके, उसके बाद में हमारे सैम्यूल डेनियल हैं जिन्होंने द क्वींस आर्काडिया लिखा है। फिर हमारे जॉन डे हैं जिन्होंने द आइल ऑफ गर्ल्स लिखा है। फिर ब्यूमाउंटेन फेल्चर है जिन्होंने क्यूपिड रोमांस लिखा है। फिर जेम्स शर्ले है जिन्होंने द आर्काडिया लिखा है। और फिर सैम्यूल रिचर्डसन है जिन्होंने अपनी हीरोइन फर्स्ट नॉवेल आफ्टर सिडनीज पेमिला। इज इट क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं। सैम्यूल डेनियल ने क्या वर्क लिखा है? ही हैज रिटन द क्वींस आर्काडिया। और जो हमारे जेम्स सर्ली हैं उन्होंने लिखा है द आर्काडिया। और ब्यूमाउंट और फेल्चर जो हैं उन्होंने लिखा है क्यूपिड्स रिवेंज।
और जॉन डे ने लिखा है द आइल ऑफ गर्ल्स। रिमेंबर दीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है दैट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बार बार रिवाइज करो। ओके, विलियम शेक्सपियर से क्लाउकेस्टर का सब प्लॉट लिया है विलियम शेक्सपियर ने। जॉन डेनियल ने अपनी बुक का नाम क्वींस आर्काडिया रखा है। फिर हमारे जेम्स शर्ली ने द आर्काडिया रखा है, ब्यूमाउंट ऑन फेल्चर क्यूपिड्स रोमांस, राइट, एंड जॉन डे ने आइल ऑफ गर्ल्स। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एरोपेगस की तरफ। तो अब देखो इधर, अब देखो एरोपेगस क्या है। एरोपेगस एक क्लब है। कैसा क्लब है? एक लिटरेरी क्लब है, राइट, जिसका क्या मोटिव था? जिसका मोटिव था टू रिफॉर्म इंग्लिश पोएट्री। एरोपेगस एक लिटरेरी क्लब है जिसका मोटिव था टू रिफॉर्म इंग्लिश पोएट्री। ओके, और इसके मेंबर कौन कौन थे? इसके मेंबर थे हमारे सिडनी जी, फिर इनके दोस्त स्पेंसर, जिन्होंने इनको अपना शेफर्ड कैलेंडर भी डेडिकेट किया था, है ना। फिर गैब्रियल हार्वी, वो भी इनका दोस्त था, ठीक है, और एडवर्ड डायर। ये 4 लोग हैं जो इस ग्रुप का पार्ट है, सिडनी, स्पेंसर, गैब्रियल हार्वी और एडवर्ड डायर, ठीक है, क्लियर। तो देखो, एरोपेगस 1579 में स्पेंसर ने अपना शेफर्ड कैलेंडर जो है वो सिडनी को डेडिकेट किया था, ये याद रखना। जब हम स्पेंसर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, एरोपेगस जो है वो प्रपोज्ड इन द 16th सेंचुरी, और ये एक सोसाइटी और क्लब था जिसका पर्पस क्या था? इंग्लिश पोइट्री को रिफॉर्म करना, राइट। और इसमें कौन कौन से फिगर्स इन्वॉल्व थे? इसमें स्पेंसर, गैब्रियल हार्वी, एडवर्ड डायर और फिलिप सिडनी इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब जो एग्जिस्टेंस है एरोपेगस की एज अ फॉर्मल सोसाइटी, वो पहली बार किसने नोटिस करी? वो पहली बार हेनरी रिचर्ड फॉक्स ने नोटिस करी। हेनरी रिचर्ड फॉक्स वो इंडिविजुअल था जिसने मेमोयर ऑफ फिलिप सिडनी में एरोपेगस का जिक्र किया है, राइट। ही हैज डिस्कस्ड अबाउट एरोपेगस फॉर द फर्स्ट टाइम। हु? हेनरी रिचर्ड फॉक्स इन द मेमोयर्स ऑफ फिलिप सिडनी। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड, हमारा आखिरी जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड द एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, ठीक है। अब देखो, एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, ये जो है ये वर्क बेसिकली एक रिस्पॉन्स वर्क है, राइट। ये एक रिस्पॉन्स था किसको? स्टीफन गॉसिन को, राइट। स्टीफन गॉसिन जो है उसने अटैक किया था इंग्लिश स्टेज को, राइट। ही हैड अटैक्ड द इंग्लिश स्टेज अपने किस काम में? इन हिज वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज, राइट। और इसी वर्क के रिस्पॉन्स में हमारे सिडनी जी ने एपोलॉजी ऑफ पोइट्री लिखी थी, राइट। ओके, so it is partly motivated by Stephen Gossin, a famous playwright who dedicated his attack on English stage The School of Abuse to Sydney in 1579. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल ऐसे है जो कि 1583 के पहले लिखा गया था, ऑफ कोर्स, ठीक है। इस मतलब इसने ऐसा नहीं है कि बस इसी को अटैक किया, ही इज बेसिकली टॉक जनरली अबाउट पोइट्री, राइट। इसने बहुत सारे उन इश्यूज पे भी डील किया है जहाँ पे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जिस वजह से पोइट्री और पोएट को बैनिश किया है, इसने उन सब चीज़ों के बारे में भी ही हैज डिस्कस्ड, राइट। एंड ही सेज कि पोइट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आकर फिलॉसफी, हिस्ट्री, एथिक्स सब मिल जाते हैं। तो जहाँ पर अगर तुम्हें एक ही चीज़ में सब कुछ मिल रहा है, व्हाट कुड बी बेटर देन दैट, राइट। वो कह रहा है कि पोइट्री का जो पर्पस है दैट इज टू टीच एंड डिलाइट। और ये जो आइडिया था ये हॉरिस ने पहले ही दे चुके हैं, हॉरिस साहब ये पहले ही दे चुके हैं, राइट। ही addressed more general objectives of poetry that were given by Plato, right. Sydney integrates a number of classical and Italian prospects on fiction, right. तो ये कहता है कि यहाँ पर हिस्ट्री, एथिक्स और फिलोसफी सब आके कॉम्बाइन हो जाती है। सो व्हाट कुड बी बेटर देन दैट।
Now he divides poetry into three kinds: religious, philosophical and imaginative. And then he says कि जो poetry होता है उसका purpose होता है to teach and delight, and this idea was already given by Horace. Okay, so here we wrap up with the session of Philip Sidney. I think we've covered almost each and every important point. We're going to discuss the apology of poetry in more detail when we discuss literary criticism. Okay, so thank you everyone. If you like this video, if you feel this video is informative, please share it and spread the knowledge and give your feedback in the comment section. Keep working hard and achieve great heights. Thank you.